Hello students, how are you all? In the part 1 of stack video, I have discussed with you the mathematical ways of converting infix expression into postfix expression and infix expression into prefix expression. We have discussed the mathematical way for conducting those conversions. In this video, I'll tell you the algorithms for same. First of all, we'll discuss the algorithm to convert infix expression into postfix expression, and then we'll discuss the algorithm to convert infix expression into prefix expression. So the mathematical way to convert these expressions that we have discussed in previous video, in this video we'll discuss their algorithms. It means we are going to discuss the algorithm of second and third application of stack. Fine? Now the second application of stack was to convert infix expression into postfix. That is, stacks are used to convert infix expression into postfix. And as I've already told you, why do we need this conversion? We need this conversion because computer is not able to understand the expressions in infix notation. It only understands expression in either postfix notation or prefix notation. But being human, we understand the expression in infix notation. So there is a communication gap, you can say, between computer and human. So we need to understand how computer converts the infix expression which is given by us into either prefix or postfix, depends on the nature of the computer. Fine? Now let us discuss the algorithm first of all to convert infix expression into postfix. अगर आपको जो प्रोसेस है वो अच्छे से क्लियर है तो ये एल्गोरिथम आपके लिए बहुत इजी है. There are two parameters in the algorithm, Q and P. Q is what? Q is the given arithmetic expression in infix notation. जो हमें arithmetic expression given है infix notation में, that is Q. And P is what? P वो equivalent postfix expression होगी जो हमने बनानी है. So P is the equivalent postfix expression which we have to find. ठीक है? Now the step 1. पहला step क्या होता था, आपको याद है? पहला step होता था कि हमने जो expression given है उसके starting में और ending में brackets लगानी है. यही होता था ना first step. So the first step is add this bracket, starting bracket and ending bracket at the start and the end of Q. Q means जो हमें infix expression given है उसके starting और ending में brackets लगा दो. Simple. Second step. फिर हम क्या करते हैं? फिर हम टेबल बनाते हैं और सारे सिंबल्स को टर्न बाय टर्न ट्रावर्स करते हैं और 4 रूल्स फॉलो करते हैं. कौन से 4 रूल्स? पहला रूल होता है कि अगर ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट को स्टैक में पुश कर दो. अगर ऑपरेंड आ जाए ABC तो उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में लिख दो. 2 रूल्स हो गए. थर्ड रूल, अगर ऑपरेटर आ जाए तो ऑपरेटर को हमने स्टैक में पुश करना है. ये देखना है कि स्टैक में पहले कोई ऑपरेटर तो नहीं पड़ा. अगर नहीं पड़ा तो हम ऑपरेटर को डायरेक्टली स्टैक में पुश कर सकते हैं. ये मैं सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ, जस्ट फास्ट करवा रही हूँ बिकॉज ये आपने रिवाइज कर लिया हुआ है. और अगर स्टैक में पहले से कोई ऑपरेटर पड़ा हुआ है तो हम उसकी प्रायोरिटी देखते हैं कि क्या जो ऑपरेटर स्टैक में पड़ा है उसकी प्रायोरिटी हमारे अब वाले ऑपरेटर से ज़्यादा है. अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रायोरिटी के बाद लोअर प्रायोरिटी वाला नहीं आ सकता. फिर हमें उस ऑपरेटर को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में शिफ्ट करना पड़ता है. एंड फोर्थ रूल था क्लोजिंग ब्रैकेट का. जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो क्या करना होता है? स्टैक में से सारे ऑपरेटर्स को 1 बाय 1 उठाना है और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डालते जाना है जब तक स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती और स्टार्टिंग ब्रैकेट को रिमूव कर देना है. यही 4 रूल्स होते थे. बस इसी हिसाब से ये एल्गोरिथम है. सो सेकेंड स्टेप इज स्कैन Q फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बिकॉज हमारी एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट हमें गिवन है, हमने उसको टेबुलर फॉर्म में लिखा है बट एक्सप्रेशन तो लेफ्ट टू राइट गिवन है ना. तो सारी एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करो एंड रिपीट स्टेप्स 3 to 6 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ Q. हर एलिमेंट के लिए स्टेप्स रिपीट करो. कौन से स्टेप्स? लेट अस सी. और कब तक रिपीट करो? जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता या जब तक सिंबल्स नहीं खत्म हो जाते. ठीक है? सो फर्स्ट स्टेप, अगर ऑपरेंड आया तो ऑपरेंड को P में डाल दो. इजी. अगर स्टार्टिंग ब्रैकेट आई तो
उसको स्टैक में पुश कर दो, इजी। नेक्स्ट, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आती है तो क्या करते हैं हम? क्लोजिंग ब्रैकेट के केस में हम क्या करते हैं? पॉप फ्रॉम स्टैक, स्टैक में से पॉप करो, डिलीट करो, रिमूव करो एंड ऐड टू पी, और पी में डाल दो। क्या डाल दो? ऑल द ऑपरेटर्स वन बाय वन, सारे ऑपरेटर्स स्टैक में से पॉप करो, पी में डालते जाओ एक एक करके, तब तक जब तक स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं आ जाती। और जैसे स्टार्टिंग ब्रैकेट आ जाती है तो पॉप करना बंद कर दो, और नेक्स्ट स्टेप स्टार्टिंग ब्रैकेट को स्टैक में से रिमूव कर दो। सिंपल। एंड फोर्थ क्या होगा कि अगर हमारे पास ऑपरेटर आ जाता है तब हमने क्या करना है? इफ एनी ऑपरेटर दिस इज फाउंड, ये जो सिंबल है किसी भी, इट कुड बी एनी ऑपरेटर, इट कुड बी एक्सपोनेंट, इट कुड बी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इट कुड बी एडिशन, इट कुड बी सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऑपरेटर आ जाता है तब क्या करना है? तब हमने देखना है कि स्टैक में हमारे ऑपरेटर से हायर या सेम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर तो नहीं पड़ा हुआ। अगर पड़ा हुआ है सेम वाला भी या हायर वाला भी, तो हमें उसको पहले एक्सप्रेशन में शिफ्ट करना पड़ता है। सो पॉप फ्रॉम स्टैक, स्टैक से पॉप करो एंड ऐड टू पी ईच ऑपरेटर विच हैज सेम और हायर प्रेसिडेंस देन द ऑपरेटर विच वी आर गोइंग टू स्टडी या विच वी आर ट्रावर्सिंग दिस मूवमेंट। क्या करना है हमने? जो ऑपरेटर हमने अब इंसर्ट करना है स्टैक में, अगर स्टैक में पहले से जो ऑपरेटर पड़ा है वो हमारे ऑपरेटर से ज़्यादा प्रेसिडेंस वाला है या सेम है, तो क्या करो? उसको उठा के पी में डाल दो और फिर अपने ऑपरेटर को स्टैक में पुश कर दो। क्लियर? तो इस तरह करते करते जब हम सारे सिंबल्स प्रोसेस कर देंगे तो एंड में हमारे पास ऑटोमेटिकली थर्ड कॉलम में पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बनती जाएगी और हमें एंड में मिल जाएगी। सो आफ्टर फिनिशिंग द लूप आवर एल्गोरिथम एग्जिट्स। Why? Because we have obtained the equivalent postfix expression. Fine? This is clear? Now let us discuss the next algorithm. That is to convert infix into prefix. आपको पता है कि infix और postfix and infix to prefix के steps almost same है। फर्क क्या है? जो postfix में काम स्टार्टिंग ब्रैकेट करती है वो प्रीफिक्स में काम क्लोजिंग ब्रैकेट करती है एंड वाइस वर्सा। ठीक है? सो लेट अस सी दिस एल्गोरिथम आल्सो, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। इनफिक्स टू प्रीफिक्स एल्गोरिथम के 4 पैरामीटर्स हैं। पी क्या है? सबसे पहले क्यू क्या है? क्यू गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन है, जैसे पिछले एल्गोरिथम में भी क्यू गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन था। पी क्या है? पी जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है जो हम ढूंढ रहे हैं, which we are going to find, that is P. अभी P में कुछ नहीं है, P is empty, P is unknown, हमने find करना है P. Q dash क्या है? Q dash is the reverse of Q. I hope you remember कि infix to prefix करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम starting और closing brackets दे देते हैं infix expression में, फिर हम पूरे expression को reverse करते हैं। तो Q जो है वो given infix expression है and Q dash उसको रिवर्स करके जो एक्सप्रेशन मिली वो है। सिमिलरली P डैश जो हमें थर्ड कॉलम में एक्सप्रेशन मिलेगी दैट इज P डैश, और जब उसको रिवर्स करेंगे और आंसर मिल जाएगा दैट इज P. सो लेट मी रीड द पैरामीटर्स. Q, इट इज द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन. Q डैश, इट इज द रिवर्स ऑफ Q. P, it is the prefix expression which we are to find, and P dash is the reverse of P. Fine? Now first step. Add starting bracket and closing bracket at both ends of Q. Clear? Next step, reverse Q and store it in Q dash. Q में brackets add करके उसको reverse कर दो और जो expression बनी उसको Q dash कह दो, reversed expression को. Third, अब Q dash reversed expression के सारे symbols को हमने scan करना है from left to right, तब तक जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, या कह लो कि जब तक सारे सिंबल्स प्रोसेस नहीं हो जाते। और हर बार हमने क्या करना है? अगर ऑपरेंड आया देन इंसर्ट इट इनटू P डैश, जो थर्ड कॉलम है उसको P डैश कह दिया, दैट इज नॉट अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, दैट इज P डैश, उसको रिवर्स करके प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मिलेगी। फाइन? तो सबसे पहले अगर ऑपरेंड आया तो क्या किया हमने? ऑपरेंड को P डैश में डाल दिया, थर्ड कॉलम में डाल दिया,
अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आई है, इसका काम वही होगा जो पोस्ट फिक्स वाले एल्गोरिदम में लेफ्ट ब्रैकेट का स्टार्टिंग ब्रैकेट का था, पुश इट इनटू स्टैक। अगर ओपनिंग ब्रैकेट आई है तो इसका काम क्या था, इसमें वो स्टेप्स आएंगे जो पिछले एल्गोरिदम में क्लोजिंग ब्रैकेट में आए हैं। क्या? पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड टू पी डैश ऑल द ऑपरेटर्स वन बाय वन। एक एक करके सारे ऑपरेटर्स स्टैक में से उठाओ, पी डैश में डालते जाओ, तब तक जब तक हमें स्टार्टिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाती, जब तक हमें क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिल जाती इस केस में, और क्लोजिंग ब्रैकेट को रिमूव कर दो। एंड लास्ट इज कि अगर ऑपरेटर आया तब क्या करना है, हमने स्टैक में से एक एक करके सारे ऑपरेटर्स को पॉप करना है और पी डैश में डालते जाना है, तब तक जब तक जिस ऑपरेटर को हमने ऐड करना है ना उससे हाईएस्ट या सेम प्रेसिडेंस वाला पड़ा हुआ है, और जब वो पी डैश में चला गया तो हम अपने ऑपरेटर को इंसर्ट कर देंगे स्टैक में, पुश कर देंगे। क्लियर? सो आफ्टर ट्रावर्सिंग ऑल द एलिमेंट्स इन द लूप जब खत्म हो जाएगी तो क्या करो, पी डैश को रिवर्स कर दो, फिर पी मिलेगी। दैट वुड बी द आंसर। जो थर्ड कॉलम में एक्सप्रेशन आई है दैट इज नॉट आवर आंसर, उसको रिवर्स करेंगे तब हमें प्रीफिक्स एक्सप्रेशन मिलेगी, दैट इज आवर आंसर। आई होप दिस एल्गोरिथम इज क्लियर टू यू। Okay students, now I hope that the concept of converting infix into postfix as well as infix into prefix is clear to you all. जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं उनको अच्छे से देखो, ठीक है। Then in your PDF of stacks chapter I have given you 3 unsolved numericals to convert infix to postfix and 3 unsolved numericals to convert infix to prefix फॉर योर प्रैक्टिस, और आंसर्स भी मैंने साथ में मेंशन किए हुए हैं। सो आप इनको कन्वर्ट करो, आंसर्स मेरे आंसर्स के साथ मैच करो, ठीक है, एंड तभी आपको ये कंसेप्ट की अच्छे से प्रैक्टिस होगी। एक कंसेप्ट है, मैं उसको फिर से रिवाइज करवाना चाहती हूँ आपको। वो कंसेप्ट है कि जब एक ऑपरेटर आता है, जब हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स कर रहे हैं या इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कर रहे हैं, जब भी कोई ऑपरेटर आता है तो वो ऑपरेटर स्टैक में किस तरीके से जाएगा, इस कंसेप्ट को मैं एक बार और आपको क्लियर करना चाहती हूँ। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं दे आर ऑल डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स ऑफ प्रायोरिटी। हाईएस्ट लेवल में आ जाता है एक्सपोनेंट, मिडिल लेवल प्रायोरिटी में आ जाता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एंड लोअर लेवल प्रायोरिटी में आ जाता है प्लस एंड माइनस। ये पता है आपको सबको, ठीक है। सो हाईएस्ट प्रायोरिटी इज ऑफ एक्सपोनेंट, देन मिडिल लेवल प्रायोरिटी इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर्स, एंड लोअर लेवल प्रायोरिटी इज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स। अब मैं आपको कौन सा कंसेप्ट रिवाइज करवाना चाहती हूँ कि जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, लेट मी शो यू। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि स्टैक में ऑलरेडी कोई ऑपरेटर पड़ा हुआ है, लेकिन अब एक नया ऑपरेटर आया, हमने इसको स्टैक में इंसर्ट करना है। सो सी, जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्टैक में कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, ब्रैकेट्स हो सकती हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, और लास्ट में स्टैक की टॉप में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर पड़ा हुआ है। इसी तरह एक्सप्रेशन में भी कुछ एक्सप्रेशन पड़ी हुई है, वी आर नॉट कंसर्न विद कि क्या पड़ी हुई है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सिंबल ट्रावर्स हुआ ना वो है माइनस। अब एक बात हमेशा याद रखनी है, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी इज़ ग्रेटर देन माइनस ऑपरेटर की प्रायोरिटी। कभी भी हायर प्रायोरिटी ऑपरेटर के आगे लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर नहीं आ सकता। यानी अगर माइनस, क्योंकि ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर को हमेशा स्टैक में पुश करना है, वी ऑल नो दैट, बट द रूल इज एनी लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर कैन नॉट बी पुश्ड ऑन द टॉप ऑफ हायर प्रायोरिटी ऑपरेटर। क्योंकि ये स्टैक है ना, इस तरह से है ना, स्टैक तो टॉप पे स्टार पड़ा हुआ है, स्टार के ऊपर माइनस नहीं आ सकता, पर
अगर आप एक्सप्रेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आप ऐसे समझो कि स्टार के आगे माइनस नहीं आ सकता, हायर प्रायोरिटी ऑपरेटर के आगे लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर नहीं आ सकता। दिस कुड नॉट बी डन। तो करना क्या है, हमें स्टार को यहाँ से रिमूव करके एक्सप्रेशन में डाल देना है और फिर माइनस जो है यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल, स्टैक के टॉप में पड़ा हुआ है एक्सपोनेंट और हमने अब इंसर्ट करना है मल्टीप्लाई। वी नो दैट एक्सपोनेंट हैज़ हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू मल्टीप्लाई। हायर प्रायोरिटी ऑपरेटर के आगे लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर नहीं आ सकता। सो व्हाट वील डू, we'll remove exponent from stack or we'll pop exponent from stack and we will insert it in the expression। अब स्टार यहाँ पर आ जाएगा प्रोवाइडेड इससे पहले जो ऑपरेटर है, अगर ऑपरेटर है, अगर तो ब्रैकेट है देन इट्स ओके, लेकिन अगर ऑपरेटर है वो भी स्टार से छोटी प्रायोरिटी का हो। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको मैं और अच्छे से आपको क्लियर करती हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सपोज यहाँ पे एक्सपोनेंट पड़ा है और इससे पहले डिवाइड पड़ा हुआ है। लेट अस सपोज ये सिचुएशन है कि स्टैक में एक्सपोनेंट टॉप पे पड़ा है, उससे पहले क्या पड़ा हुआ है, डिवाइड, ठीक है, और स्टार ने इंसर्ट होना है, मल्टीप्लाई ने यहाँ पर इंसर्ट होना है, लेकिन हमें पता है कि एक्सपोनेंट जो है वो हायर प्रायोरिटी है मल्टीप्लाई से। हायर प्रायोरिटी के आगे लोअर प्रायोरिटी वाला नहीं आ सकता। सो व्हाट वील डू, वील पॉप एक्सपोनेंट फ्रॉम हियर एंड वी विल इंसर्ट इट इन द एक्सप्रेशन। अब मल्टीप्लाई यहाँ आ सकता है कि नहीं, अगेन द सेम क्वेश्चन। स्टैक के टॉप में पड़ा हुआ है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई की सेम प्रायोरिटी होती है, तो ये भी याद रखना है सेम प्रायोरिटी के आगे सेम प्रायोरिटी वाला भी नहीं आ सकता। यानी डिवाइड के आगे मल्टीप्लाई भी नहीं आ सकता, या प्लस के आगे माइनस नहीं आ सकता, या माइनस के आगे प्लस नहीं आ सकता, या मल्टीप्लाई के आगे डिवाइड नहीं आ सकता, क्योंकि ये सेम प्रायोरिटीज़ हैं। सेम प्रायोरिटी के आगे भी सेम प्रायोरिटी वाला नहीं आ सकता। हायर प्रायोरिटी के आगे लोअर प्रायोरिटी वाला भी नहीं आ सकता, सेम प्रायोरिटी के आगे सेम प्रायोरिटी वाला भी नहीं आ सकता। सो डिवाइड को भी उठा के इधर भेजना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर लोअर प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर है स्टार से, यहाँ ब्रैकेट है, फिर यहाँ स्टार इंसर्ट हो जाएगा। सो इसको समझाने के लिए ना एक मैंने डायग्राम सी बनाई है, रफ सी, आपके माइंड में बैठ जाएगी। ये देखो, ये बिगर बॉक्स है, ये स्मॉलर बॉक्स है। बिगर बॉक्स के आगे स्मॉलर बॉक्स नहीं आ सकता, यानी हायर प्रायोरिटी ऑपरेटर के आगे लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर नहीं आ सकता। मल्टीप्लाई के आगे माइनस नहीं आ सकता, मल्टीप्लाई को शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर माइनस आएगा। एक्सपोनेंट के आगे मल्टीप्लाई नहीं आ सकता, एक्सपोनेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा। सिमिलरली अगर हम कहें डिवाइड के आगे माइनस नहीं आ सकता, या एक्सपोनेंट के आगे प्लस नहीं आ सकता, एक्सपोनेंट के आगे माइनस नहीं आ सकता, एक्सपोनेंट के आगे मल्टीप्लाई नहीं आ सकता, कभी भी हायर प्रायोरिटी के आगे लोअर प्रायोरिटी वाला नहीं आ सकता। आई होप अब आपके माइंड में बैठ गया वो कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट, ध्यान से देखो। अब देखो, स्टैक के टॉप में पड़ा हुआ है डिवाइड और किसने इंसर्ट होना है, मल्टीप्लाई ने। ये सेम प्रेसिडेंस के हैं, तो मैंने आपको अभी बताया है कि सेम प्रेसिडेंस के आगे सेम प्रेसिडेंस वाला नहीं आ सकता। सो हम डिवाइड को पहले इधर शिफ्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा, प्रोवाइडेड इससे पहले कोई हायर प्रायोरिटी या सेम वाला ऑपरेटर नहीं पड़ा। सिमिलरली इधर पड़ा हुआ है प्लस स्टैक के टॉप पर, और माइनस की टर्न है, तो माइनस प्लस के आगे नहीं आ सकता क्योंकि सेम प्रायोरिटी भी साथ में नहीं हो सकते। सो प्लस को हम यहाँ से पॉप करके एक्सप्रेशन में डालेंगे, फिर यहाँ माइनस आ सकता है। क्लियर? सो सेम प्रायोरिटी के आगे भी सेम प्रायोरिटी वाला नहीं आ सकता, डिवाइड के आगे मल्टीप्लाई नहीं आ सकता,
या मल्टीप्लाई के आगे डिवाइड नहीं आ सकता, प्लस के आगे माइनस नहीं आ सकता, माइनस के आगे प्लस नहीं आ सकता। ठीक है, सो आई होप ये भी आपको क्लियर है। ये सब था क्या नहीं हो सकता। अब हमने देखना है कि हो क्या सकता है, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज़ पॉसिबल। पॉसिबल सिर्फ इतना है, ओनली दिस थिंग इज़ पॉसिबल कि लोअर प्रायोरिटी के आगे हायर प्रायोरिटी आए, दिस इज़ पॉसिबल। जैसे स्टैक में पड़ा हुआ है प्लस या माइनस पड़ा हुआ है और इधर मल्टीप्लाई है या डिवाइड है या एक्सपोनेंट है, कोई भी ऑपरेटर जो इससे ज़्यादा प्रेसिडेंस वाला है वो इसके आगे आ सकता है। तो मल्टीप्लाई आराम से प्लस के आगे आ सकता है, हमें प्लस को इधर भेजना नहीं है। प्लस मल्टीप्लाई ये दोनों स्टैक में रहेंगे, स्टैक के नीचे प्लस है और ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई। अनदर एग्जाम्पल, डिवाइड पड़ा हुआ है स्टैक में और एक्सपोनेंट की टर्न है, तो एक्सपोनेंट बड़े आराम से डिवाइड के आगे आ सकता है क्योंकि लोअर प्रायोरिटी के आगे हायर प्रायोरिटी वाला आ सकता है। हमें डिवाइड को यहाँ शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इसको डायग्राम से देखें तो स्मॉल बॉक्स के आगे बिगर बॉक्स आ सकता है, प्लस के आगे मल्टीप्लाई आ सकता है, माइनस के आगे मल्टीप्लाई आ सकता है, प्लस के आगे डिवाइड आ सकता है, माइनस के आगे डिवाइड आ सकता है, डिवाइड के आगे एक्सपोनेंट आ सकता है, मल्टीप्लाई के आगे एक्सपोनेंट आ सकता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ आपको इस कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लैरिफाई करने के लिए। कंसिडर दिस एग्जाम्पल, जहाँ पर स्टैक में टॉप पे पड़ा हुआ है मल्टीप्लाई, उससे नीचे पड़ा हुआ है डिवाइड माइनस और सबसे नीचे पड़ा हुआ है डिवाइड और उससे पहले कुछ और चीज़ें, प्लस की टर्न है। तो प्लस ने अब स्टैक में आना है, तो क्या प्लस इधर आ सकता है? नो, हायर प्रायोरिटी के आगे लोअर प्रायोरिटी नहीं आ सकता। सो हम मल्टीप्लाई को यहाँ से पॉप करके इधर डाल देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, अब प्लस आ सकता है इधर? नो, अभी भी नहीं आ सकता क्योंकि माइनस और प्लस की सेम प्रायोरिटी और सेम प्रायोरिटी के आगे भी सेम प्रायोरिटी वाला नहीं आ सकता। सो हम माइनस को पॉप करेंगे और एक्सप्रेशन में डाल देंगे। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या अब प्लस इधर आ सकता है? नो, अभी भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हायर प्रायोरिटी के आगे भी लोअर प्रायोरिटी वाला नहीं आ सकता। सो हम डिवाइड को भी यहाँ निकाल के इधर डाल देंगे। अब अगर इसके पीछे भी कोई ऑपरेटर ऐसा है जो प्लस से हाइयर है या प्लस से सेम प्रेसिडेंस वाला है, तब भी हमें उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, और नहीं है फिर प्लस इधर आ सकता है। और इन कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस या क्लैरिटी होगी जब आप जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं मैंने पीडीएफ में डाले हैं, 3 फॉर इन कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड 3 फॉर कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स। जब आप उनको प्रैक्टिस करोगे ना, तब आपको ये कंसेप्ट और अच्छा क्लियर हो जाएगा। प्लस मैंने कुछ और सॉल्व न्यूमेरिकल्स भी पीडीएफ में डाले हैं, पहले उनको अच्छे से स्टडी करो, सॉल्व न्यूमेरिकल्स को, उसके बाद अनसॉल्व वालों को सॉल्व करना। फाइन। Now students, let us discuss the 4th and 5th application of stack. Second और third application में क्या था? Conversion of infix to postfix, ये second थी, and conversion of infix to prefix, ये third थी। अब कंप्यूटर के पास प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशंस तो कन्वर्ट करके आ गई। अब कंप्यूटर ने उनका आंसर कैसे निकालना है, उनको इवेल्युएट कैसे करना है, यही हमारी 4th and 5th एप्लीकेशंस हैं स्टैक्स की। So 4th application is stacks are used to evaluate postfix expression, कि एक बार हमने infix expression को convert करके postfix बना दिया, अब postfix expression का आंसर कैसे निकलेगा। And 5th application would be stacks are used to evaluate prefix expression, कि एक बार हमने infix को prefix में convert कर दिया, अब कंप्यूटर प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करेगा, कैसे उसका आंसर निकालेगा। सो लेट अस डिस्कस दीज टू न्यूमेरिकल्स
या दीज टू एप्लीकेशंस ऑफ स्टैट्स, और ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड है. So to explain them, let me take an example with you. Okay, now let us first of all explain evaluation of postfix expression, क्योंकि ये हल्का सा आप कह दो prefix comparatively थोड़ा easier topic है. So let us start with this evaluation of postfix expression. तो एग्जाम्स में आपको इस तरह postfix expression given होगा. See, this is a postfix expression because operators are present after the operands. So such type of postfix expression would be given to you and you will be asked to solve this expression or to evaluate this expression. तो कैसे करना है? बहुत सिंपल है. आपने postfix के केस में जब evaluation of postfix करना है तब आपने 2 कॉलम्स का एक टेबल बनाना है. First column is of symbols and second column is of stack. सिंबल्स कॉलम में जितने भी ये सिंबल्स हमें गिवन है विद कॉमास जो हमें गिवन है उनको यहाँ नोट डाउन करना है. 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई, 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई, 12 4 डिवाइड माइनस, 12 4 डिवाइड माइनस. तो मैंने सारे सिंबल्स को नोट डाउन कर लिया. नोट करके मैं काउंट जरूर करती हूँ कि जितने गिवन हैं क्या उतने मैंने नोट कर लिए, कुछ मिस तो नहीं हो गया. ओके, नाउ सॉल्व कैसे करना है. अब आप देखो ध्यान से, तो जितने सिंबल्स हैं ये 2 टाइप्स के सिंबल्स हैं. या तो ऑपरेंड्स हमें गिवन है 5 6 2 12 4, या हमें ऑपरेटर्स गिवन है प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस. सो इसका मतलब 2 रूल्स होंगे कि अगर ऑपरेंड आया तब क्या करना है और अगर ऑपरेटर आया है तब क्या करना है. ठीक है. नाउ द फर्स्ट रूल, अगर ऑपरेंड आया तो क्या करना है, आपने ऑपरेंड को स्टैक में पुश कर देना है. सो 5 आया, सो 5 इज पुश्ड इन स्टैक. 6 आया, नेक्स्ट स्टेप में 6 इज पुश्ड इन स्टैक. 2 आया, नेक्स्ट स्टेप में 2 इज ऑल्सो पुश्ड इन स्टैक बिकॉज दीज आर ऑपरेंड्स एंड द रूल सेज कि अगर ऑपरेंड आया तो स्टैक में पुश कर दो. आई होप इट इज क्लियर. आई रिपीट, जब भी ऑपरेंड आता है उसको स्टैक में आपने पुश करते जाना है. अब ऑपरेटर आया तब क्या करना है. जब भी ऑपरेटर आया आपने क्या करना है. अब देखो, अगर हम देखें तो ये स्टैक है. स्टैक में किस तरह एलिमेंट्स गए हैं. सबसे पहले 5 गया, फिर 6 गया, फिर 2 गया, टॉपर 2 है. अब आया ऑपरेटर. जब भी ऑपरेटर आया आपने क्या करना है, आपने 2 टॉप मोस्ट ऑपरेंड्स को पॉप करना है स्टैक में से. 2 निकाल दिया, 6 निकाल दिया. ठीक है. 2 जो पहले निकाला रफ वर्क में उसको मैंने राइट साइड पे लिख दिया, जो बाद में निकाला 6 उसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया, यानी इस सीक्वेंस में लिख दिया 6 2 6 2. आई रिपीट, जो सबसे ऊपर था उसको राइट साइड पे लिख दिया, जो उससे नीचे उसको लेफ्ट में लिख दिया, और बीच में ये ऑपरेटर लगा दिया प्लस. What is the answer? 6 plus 2 is 8. 8 को दोबारा मैंने स्टैक में पुश कर दिया. 8. तो स्टैक क्या बन गया, प्लस के बाद स्टैक क्या बन गया, 5, 8. अभी तो मैंने आपको स्टैक लेके समझाया है, बट जब प्रैक्टिस हो जाएगी इसके बिना ही आप कर लोगे. कैसे? प्लस आया तो लास्ट 2 में प्लस लगा देना. 6 plus 2 8. अब मैं आपको ऐसे ही करवाऊंगी बिना स्टैक. मल्टीप्लाई आया तो लास्ट 2, 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 8s are 40. 12, this is an operand, so it will be inserted in stack. 4, this is again an operand, it will be inserted in stack. Divide आया तो लास्ट 2 में डिवाइड लगा देना है. 12 divided by 4 is 3, 40, 3. माइनस आया तो लास्ट 2 में माइनस लगा देना है. 40 minus 3, 37. And this is the answer of this postfix expression. Clear? I repeat, जब ऑपरेंड आता है तो आपने उसको स्टैक में डाल देना है. जब भी ऑपरेटर आता है तो जो लास्ट 2 ऑपरेंड्स है ना उनके बीच में वो ऑपरेटर रख दो, और जो आंसर आए उनकी जगह पे वो आंसर लिख दो. लाइक प्लस आया था तो 6 plus 2 8 लिख दिया, 6 2 हटा दिया. मल्टीप्लाई आया था 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40. 8 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं करना, ऑल दो आंसर सेम होगा, लेकिन डिवाइड के केस में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी.
5 मल्टीप्लाई बाय 8 40, 12 आया बाद में लगा दिया, 4 आया बाद में लगा दिया, अब डिवाइड आया तो लास्ट 2 में आपने डिवाइड लगा देना है। 12 डिवाइडेड बाय 4, नॉट 4 डिवाइडेड बाय 12, 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 3। आई होप इट इज क्लियर। और मैंने आपको कुछ अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स भी दिए हैं, 2 मैंने सॉल्व रखे हैं पीडीएफ में फॉर योर प्रैक्टिस एंड 3 मैंने अनसॉल्व रखे हैं, आंसर्स भी दिए हुए हैं। आप उनको प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो और इस कंसेप्ट को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लो। क्लियर? सो दीज आर 2 सॉल्व न्यूमेरिकल्स and these are 3 unsolved numericals for your practice और answers भी mentioned हैं। Now let us study algorithm of evaluation of postfix expression। मैंने algorithm का name रख दिया eval underscore postfix and there is only one parameter कि हमें क्योंकि एक expression ही given होती है बस, that is p। So it is a given arithmetic expression in postfix notation that we are going to evaluate, जो हमें evaluate करनी है, जिसका हमने आंसर निकालना है। तो करना क्या है, P के सारे सिंबल्स को लेफ्ट टू राइट हमने स्कैन करना है और ये स्टेप्स को रिपीट करना है जब तक सारे सिंबल्स प्रोसेस नहीं हो जाते। क्या स्टेप्स हैं कि अगर ऑपरेंड आया तो उसको स्टैक में पुश कर दो, वेरी सिंपल। और अगर ऑपरेटर आया तो क्या करो, पॉप 2 टॉप मोस्ट एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक, स्टैक में से 2 टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप किया जैसे हमने इसमें किया था। स्टैक में से 2 टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप किया। टॉप मोस्ट को अगर हम A कह दें और सेकंड जो टॉप मोस्ट है उसको B कह दें, इसको हम A कह दें, इसको हम B कह दें, तो हमने ऑपरेटर कैसे लगाना है, B ऑपरेटर A, जो भी B है, जो भी A है, जो भी ऑपरेटर है। सो हमने क्या करना है, हमने A लेट pop 2 topmost elements from stack, let A be the topmost element and B be the next to topmost element। Next step, B operator A evaluate कर लो और push the result of this again in stack। I hope it is clear। तो ऑपरेंड आया तो पुश कर दो, ऑपरेटर आया तो ये स्टेप्स कर दो और ये लूप चलती जाएगी जब तक सारे सिंबल्स प्रोसेस नहीं हो जाते। और जब सारे सिंबल्स प्रोसेस हो गए, कंट्रोल लूप से बाहर आया और रिजल्ट क्या आएगा, जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा स्टैक का उस टाइम, स्टैक में जो भी टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा, जैसे स्टैक में क्या टॉप मोस्ट रह गया था 37। सो दिस इज द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल। Now let us discuss how we can evaluate prefix expression। ठीक है, we have already discussed how to evaluate postfix expression। Now we will study how to evaluate prefix expression। postfix है comparatively आप कह दो थोड़ी सी complex है, इसको अच्छे से समझना है। इसके मैं आपको 2 न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगी वीडियो में, क्योंकि हल्का सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसका। सो फॉर दैट लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। नाउ सी दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। कैसे पता ये एक्सप्रेशन प्रीफिक्स है, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें ऑपरेटर्स पहले हैं फिर ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन वुड बी गिवन टू यू इन द एग्जाम्स and you will be asked to evaluate this expression or to solve or to find the answer of this expression। तो क्या करना है हमने, जो हमें expression given है ना, हमने इसको symbols column में लिख देना है। अब ध्यान से सुनो, जब हमने evaluation of postfix expression किया था, उसमें हमने जो टेबल बनाया था ना, वो 2 columns का टेबल था, symbols and stack। I have it right here, see। पोस्टफिक्स में जो टेबल बनाया था वो 2 कॉलम्स का था, सिंबल कॉलम एंड स्टैक कॉलम। पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स के केस में। लेकिन जब हमने इवैल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स करनी है ना, तो जो हमने टेबल बनाना है वो 3 कॉलम्स का टेबल होगा। फर्स्ट कॉलम वुड बी सेम, सिंबल कॉलम। सेकेंड एंड थर्ड कॉलम में हम 2 तरह के स्टैक्स यूज़ करेंगे, एक है ऑपरेटर स्टैक, एक है ऑपरेंड स्टैक। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल में एक कॉमन स्टैक था ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के लिए। इसमें हमने 2 अलग अलग स्टैक्स यूज़ करने हैं, ऑपरेटर स्टैक एंड ऑपरेंड स्टैक।
So while evaluating prefix expression, we will create a table of 3 columns: symbol, operator stack and operand stack. इतना क्लियर? फिर जितने सिंबल्स गिवन है उन सबको यहाँ नोट डाउन कर दो एंड अगेन काउंटिंग ज़रूर करो कि कोई मिस तो नहीं कर दिया आपने, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट कि करना कैसे है। अब फिर आप देखो कि सिंबल्स 2 तरह के ही हैं हमारे पास, या ऑपरेटर्स हैं या ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेटर कौन से हैं? प्लस, डिवाइड, माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस। एंड ऑपरेंड्स कौन से हैं? 12, 7, 3, 2, 1, 5। सो इट मीन्स हमारे पास 2 रूल्स होंगे कि अगर ऑपरेटर है तो ये करना है, ऑपरेंड है तो ये काम करना है। नाउ लेट अस सी करना क्या है। सबसे पहले जो हमारा सिंबल है ना वो ऑपरेटर ही होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है ना, तो ऑपरेटर से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। जब भी ऑपरेटर आए तो क्या करना है, आपने ऑपरेटर को ऑपरेटर स्टैक में डाल देना एंड इस ऑपरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग एक मार्कर, मैं यूज़ करती होती हूँ हैश, कई बुक्स में @ वाला मार्कर यूज़ किया हुआ है। जब भी कोई ऑपरेटर आए तो ऑपरेटर को ऑपरेटर स्टैक में डाल देना है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मार्कर ऑपरेंड स्टैक में डाल देना है। अभी आपको स्टेप इतना क्लियर नहीं होगा, हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट सिंबल इज ऑल्सो एन ऑपरेटर, तो क्या करना है, ऑपरेटर को ऑपरेटर स्टैक में डाल दो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मार्कर ऑपरेंड स्टैक में डाल दो। तो ये मार्कर था प्लस की वजह से और ये मार्कर आया डिवाइड की वजह से। यहाँ तक क्लियर है? सो ऑपरेटर के लिए क्या रूल है कि जब भी ऑपरेटर आए ऑपरेटर को ऑपरेटर स्टैक में डाल दो एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मार्कर को ऑपरेंड स्टैक में डाल दो। यहाँ तक क्लियर? अब अगला है कि अगर ऑपरेंड आए तो क्या करना है। अगर ऑपरेंड आए ना तो ऑपरेंड ऑफकोर्स ऑपरेंड स्टैक में ही जाएगा, लेकिन हमने ये देखना है कि ऑपरेंड स्टैक में लाइक ये स्टैक है ना, दिस इज ऑल्सो स्टैक जिसके ऊपर एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिलहाल इस स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, हैश हैश। इस स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, प्लस, ऊपर डिवाइड, है ना। अब क्या आया 12, तो 12 को आपने ऑपरेंड स्टैक में पुश करना है, लेकिन ये देखना है कि पहले कोई ऑपरेटर या पहले कोई ऑपरेंड तो नहीं पड़ा हुआ, नो, पहले मार्कर पड़ा हुआ है। सो 12 बड़े आराम से ऑपरेंड स्टैक में पुश हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज माइनस। माइनस इज, इसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। माइनस इज अगेन एन ऑपरेटर, तो क्या करना है, ऑपरेटर को ऑपरेटर स्टैक में डाल दो एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मार्कर को ऑपरेंड स्टैक में डाल दो। यहाँ तक क्लियर है? बहुत सिंपल है। फिर क्या आया, ऑपरेंड। ऑपरेंड के केस में हम क्या करते हैं, ऑपरेटर स्टैक वैसा ही रहता है, ऑपरेंड को हमने ऑपरेंड स्टैक में डालना है, लेकिन ये देखना है कि उससे पहले कोई ऑपरेंड तो नहीं है, मार्कर है, तो 7 आराम से ऑपरेंड स्टैक में चला जाएगा। यहाँ तक बहुत सिंपल था, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या किया, अगर ऑपरेटर आया तो उसको ऑपरेटर स्टैक में डाल दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मार्कर को ऑपरेंड स्टैक में डाल दिया। अगर ऑपरेंड आया तो उसको ऑपरेंड स्टैक में डाल दिया। ये देखना है कि उससे पहले कोई ऑपरेंड तो नहीं पड़ा, 2 ऑपरेंड्स इकट्ठे नहीं हो सकते। तो फिलहाल यहाँ तक कोई भी 2 ऑपरेंड्स इकट्ठे नहीं हैं, बीच में मार्कर्स हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप इज 3। 3 इज एन ऑपरेंड, सो 3 कहाँ जाएगा, 3 ऑफ कोर्स ऑपरेंड स्टैक में जाएगा, यानी इधर आएगा, लेकिन 2 ऑपरेंड्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए। 3 तब यहाँ आएगा अगर उससे पहले कोई ऑपरेंड नहीं है, लेकिन उससे पहले ऑपरेंड है 7। तो इस स्टेप में हमने क्या करना है, दिस स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे लिख लेती हूँ और एग्ज़ाम्स में आपने इसको अच्छे से देखना है। अब इस केस में हमने क्या करना है, सी 7 के बाद 3 नहीं आ सकता, 2 ऑपरेंड्स इकट्ठे नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, हमने जो यहाँ पड़ा हुआ है ना ऑपरेंड, जिसकी वजह से 3 नहीं आ पा रहा, उस ऑपरेंड को पॉप करो, ठीक है। ये काम मैं आपको पेंसिल से करके दिखाती हूँ। तो 3 क्यों ऑपरेंड स्टैक में नहीं आ पा रहा, क्योंकि वहाँ पहले 7 पड़ा हुआ है।
दो ऑपरेंड्स इकट्ठे नहीं हो सकते, तो क्या करना है हमने, 7 को पॉप करो, रिमूव कर दिया, यहाँ लिख दो। स्टैक के टॉप ऑपरेटर, जो टॉप ऑपरेटर पर है, इसको पॉप करो, माइनस, यहाँ लिख दो। क्योंकि माइनस पॉप हुआ तो माइनस के कॉरस्पॉन्डिंग जो मार्कर था इसको भी पॉप करना है। मैं ये स्टेप दोबारा करके बताऊंगी आपको, इसलिए पेंसिल से किया है, ठीक है। इसको भी पॉप किया हमने, और उसके बाद वो ऑपरेटर लिख देना है, जिस वो ऑपरेंड लिख देना है जिसकी वजह से 7 पॉप हुआ, 3, और इसको सॉल्व कर लेना है। 7 माइनस 3 इज 4। लेट मी रिपीट दिस स्टेप अगेन। मैं रब कर देती हूँ और इसको दोबारा देखते हैं कि ये स्टेप कैसे हुआ, क्योंकि ये स्टेप ही एल्गोरिदम को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। एल्गोरिदम हमारा ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगता है स्टूडेंट्स को, यहाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, क्योंकि जब एक ऑपरेंड स्टैक में पड़ा हुआ है और उसके ऊपर दूसरे ऑपरेंड ने आना है, तब हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं, क्योंकि दो ऑपरेंड्स इकट्ठे नहीं आ सकते। करना क्या है, 7 के कारण 3 नहीं आ पा रहा, तो 7 को पहले पॉप करो, यहाँ से रिमूव कर दिया। ऑपरेटर स्टैक का टॉप मोस्ट ऑपरेटर पॉप करो, इसको पॉप कर दिया। क्योंकि इसको पॉप किया ऑपरेटर को, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मार्कर था उसको भी निकालना पड़ेगा, पर इसको यूज़ नहीं करना, इसको जस्ट निकाल दिया। और जो ऑपरेंड हम रीड कर रहे हैं उसको लिख दो और इसको सॉल्व कर दो 4। अब 4 को हम यहाँ डालेंगे, ठीक है। ऑपरेंड स्टैक में क्या पड़ा हुआ है, हैश 12, ये दोनों चीज़ें रिमूव हो गई। अब 4 यहाँ डालेंगे तो फिर वही बात, 12 के साथ 4 आ जाएगा। कभी भी दो ऑपरेंड्स इकट्ठे नहीं आ सकते, फिर हम क्या करेंगे, अगेन ये स्टेप्स रिपीट करेंगे। अब 12 को पॉप करो, क्योंकि 12 के कारण 4 नहीं आ रहा। टॉप मोस्ट ऑपरेटर पॉप करो, क्योंकि इसको पॉप किया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मार्कर भी निकालना पड़ेगा। और कौन सा नया ऑपरेंड था, 4, इसको लिख दो, इसको सॉल्व करो 3। अब कोशिश करो इसको यहाँ डालने की, यस ये यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अब इससे पहले कोई ऑपरेंड नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पर ऑपरेटर स्टैक में क्या रह गया, प्लस, और ऑपरेंड स्टैक में हैश एंड 3। क्लियर, ये स्टेप्स क्लियर। एक बात नोट करनी है हमेशा, जितने ऑपरेटर्स स्टैक में होंगे उतने ही मार्कर्स ऑपरेंड स्टैक में होंगे। जब एक ऑपरेटर था, ऑपरेंड स्टैक में एक मार्कर था। व्हेन देयर वर 2 ऑपरेटर्स इन ऑपरेटर स्टैक, ऑपरेंड स्टैक हैड 2 markers. When there were 3 operators in operator stack, operand stack had 3 markers. Now only 1 operator is left in operator stack, so operand stack has only 1 marker. इस बात को साथ में देखते जाना है। Okay, let us continue. Next is operator. So operator का क्या रूल होता है, ऑपरेटर को ऑपरेटर स्टैक में डाल दो एंड कॉरस्पॉन्डिंग मार्कर को ऑपरेंड स्टैक में डाल दो। नाउ देयर इज एन ऑपरेंड, ऑपरेंड को हमने यहाँ डालना है, पर देखना है पहले कोई ऑपरेंड तो नहीं है, नहीं है, तो 2 बड़े आराम से यहाँ पर पुश हो जाएगा लाइक दिस। और ऑपरेटर स्टैक में ये 2 ऑपरेटर्स हैं अभी। देन देयर इज अनदर ऑपरेटर, पुश इट इनटू ऑपरेटर स्टैक, ठीक है, और पुश कॉरस्पॉन्डिंग मार्कर इन ऑपरेंड स्टैक, क्योंकि प्लस आया इसके कॉरस्पॉन्डिंग मार्कर डाल दिया। अब ऑपरेंड आया, ऑपरेंड ने यहाँ जाना है, पर पहले कोई ऑपरेंड नहीं होना चाहिए, नहीं है, सो 1 बड़ी इजीली यहाँ पर आ जाएगा। सो आवर ऑपरेंड स्टैक बिकम्स #3 #2 #1 और ऑपरेटर स्टैक सेम है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस। अब आया 5। नाउ दिस स्टेप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब आया 5 ने कहाँ जाना है, बिकॉज इट इज़ एन ऑपरेंड, डेफिनेटली इट विल गो इन ऑपरेंड स्टैक। लेकिन 2 ऑपरेंड्स इकट्ठे नहीं हो सकते, फिर हमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, 1 की वजह से 5 नहीं आ रहा, 1 को पॉप करो, इधर लिखो, टॉप मोस्ट ऑपरेटर पॉप करो, इधर लिखो, क्योंकि ऑपरेटर पॉप किया इसका मार्कर भी पॉप कर दो, और
जिस ऑपरेंड की टर्न है उसको लिख दो और इसको सॉल्व करो। 1 + 5 = 6। 6 को अब हम यहाँ डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर 2 और 6 इकट्ठे हो जाएंगे, दो ऑपरेंड्स इकट्ठे नहीं हो सकते। फिर हम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। क्या? 2 को निकालो, पॉप करो, टॉप मोस्ट ऑपरेटर पॉप करो एंड इसका मार्कर भी पॉप कर दो। एंड नया ऑपरेंड कौन सा था? 6। इसको लिखो और उसको सॉल्व कर दो। 6 × 2 = 12। अब 12 को यहाँ पुश करो, बट अगेन द सेम प्रॉब्लम, 12 भी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 3 और 12 इकट्ठे हो जाएंगे। फिर स्टेप्स रिपीट करो। 3 को पॉप करो, जो ऑपरेटर है टॉप मोस्ट उसको पॉप करो। ऑपरेटर पॉप किया तो उसका मार्कर भी पॉप करना पड़ेगा। और लेटेस्ट ऑपरेंड कौन सा है? 12। इसको लिखो और इसको सॉल्व करो। 3 + 12 = 15। अब 15 को यहाँ डालने की कोशिश करो। यस, 15 यहाँ डल जाएगा क्योंकि स्टैक में पहले कोई ऑपरेंड नहीं है। एंड सिंबल्स भी ख़त्म, ऑपरेटर स्टैक भी एम्प्टी हो गया, ऑपरेंड स्टैक में एक वैल्यू रह गई, जो वैल्यू आई दिस इज़ आवर आंसर। यानी इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारा आया। क्लियर? लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल बिकॉज दिस प्रोसेस इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं एक और एग्जाम्पल आपको लेती हूँ इवेल्युएशन ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के लिए। नाउ अनदर एग्जाम्पल of evaluating prefix expression. Let us suppose we are given this prefix expression, we have to evaluate it. Now the first step is to make a table of 3 columns. The first column is of symbols, the second column is of operator stack, and third column is of operand stack. Then note down all the symbols which are given to us and do count कि आपने कुछ left तो नहीं कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, we have 9 symbols, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yes. Now let us start evaluating this expression. Now what does the rule says? अगर operator आया then push it into operator stack and push corresponding marker in operand stack. Again operator आया, push it in operator stack and push corresponding marker in operand stack. Again there is an operator, push operator in operator stack, push corresponding marker in operand stack. Then there is an operand, so operator stack would remain same or operand would be pushed in operand stack. Now there is another operand, this step is important. 2 6 के ऊपर नहीं आ सकता because stack है ना, हैश 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 6, इसके ऊपर 2 नहीं आ सकता क्योंकि 2 ऑपरेंड्स इकट्ठे नहीं हो सकते. So what we'll do here, we'll remove 6, we'll remove the topmost operator and its corresponding marker. किसकी वजह से पॉप हुआ? 2, या जो लेटेस्ट ऑपरेंड है that is 2, and solve this, that becomes 8 and try to push 8 in stack. Yes, 8 stack में आ जाएगा. क्यों? क्योंकि उससे पहले कोई ऑपरेंड नहीं है. So the new stack becomes, या ऑपरेंड स्टैक becomes हैश हैश 8 और ऑपरेटर स्टैक में क्या रह गया? माइनस मल्टीप्लाई. नाउ 2 ऑपरेटर्स आर देयर, सो 2 मार्कर्स आर देयर और इन ऑपरेंड स्टैक. नाउ नेक्स्ट इज 5. 5 अगेन 8 के ऊपर नहीं आ सकता, 2 ऑपरेंड्स इकट्ठे नहीं हो सकते. अब मैं पेन के साथ करूँगी जैसे आपने करना है. अब आपने एग्जाम्स में कैसे करना है, आपने इसको काटना नहीं है. 8 निकाला, मल्टीप्लाई निकाला, कॉरस्पॉन्डिंग मार्कर निकला और आगे क्या लिख दिया? 5. 8 5s are 40. 40 को पुश करने की कोशिश की. यस, 40 पुश हो जाएगा क्योंकि उससे पहले एक मार्कर है. सो इस स्टेप के बाद ऑपरेंड स्टैक में क्या रह गया? हैश 8 भी निकल गया था, हैश भी निकल गया था, 40 और यहाँ से मल्टीप्लाई निकल चुका है, यहाँ पर आया माइनस. नाउ डिवाइड, माइनस डिवाइड हैश 40 hash. This marker is for division operator. Then 12 minus divide hash 40 hash 12 आराम से आ गया क्योंकि पहले कोई ऑपरेंड नहीं है. Then 4. अब हम क्या करेंगे इस केस में? 12 के बाद 4 नहीं आ पाएगा, सो 12 को निकाला, ऑपरेटर निकाला,
तो मार्कर भी निकलेगा, और 4 दैट इज़ 3 को डालने की कोशिश की क्योंकि ये दोनों निकल चुके हुए हैं, ठीक है। 40 के ऊपर 3 नहीं आ पाएगा। अगेन 40 को पॉप किया, इसको ऑपरेटर को पॉप किया, लेटेस्ट ऑपरेंड लिखा, सॉल्व किया, दैट बिकम्स 37, ठीक है। सो अब स्टैक हमारा खाली हो चुका था क्योंकि 12 निकला, डिवाइड के लिए मार्कर भी निकला था, 40 पॉप हुआ था, माइनस के लिए मार्कर भी पॉप हुआ था, और 37 को हम आराम से डाल सकते हैं स्टैक में क्योंकि स्टैक के इससे पहले कोई ऑपरेंड नहीं है, और ये दोनों ऑपरेटर्स भी पॉप हो चुके हैं, और सिंबल्स भी ख़त्म हो गए हैं, सिंबल्स भी ख़त्म हो गए, ऑपरेटर स्टैक भी खाली हो गया, ऑपरेंड स्टैक में एक ही ऑपरेंड रह गया, एंड दैट वुड बी द आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। वीडियो है, वीडियो को आप जितनी बार मर्जी देखी जाओ समझने के लिए, ठीक है। जब आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा तब मैंने ये देखो 3 अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। फाइन, दीज आर 3 अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स। इनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, आंसर्स मैच करो मेरे आंसर्स के साथ, और इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करो। नेक्स्ट इज एल्गोरिथम टू कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स। अब इसका एल्गोरिथम भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्यों? क्योंकि प्रोसेस वॉज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे आई कैन। द नेम ऑफ द एल्गोरिथम इज eval underscore prefix for evaluation of prefix, and there is only one parameter p, that is the prefix expression which is given to us. So p is the given arithmetic expression in prefix notation. Okay, first step is हम करते क्या, हम सारे एलिमेंट्स को लिख लेते हैं सिंबल टेबल में, राइट, और हम सारे एलिमेंट्स को एक एक करके सिंबल्स को स्कैन करते हैं। सो स्कैन p फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बिकॉज ये सिंबल्स हैं, इनको लेफ्ट टू राइट स्कैन करो। हम कैसे करते हैं? टॉप टू बॉटम, वो तो हमारा मेथड है ना, अदरवाइज सिंबल्स लेफ्ट टू राइट ही स्कैन हो रहे हैं ना। स्कैन सिंबल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट दीज स्टेप्स until all symbols are processed, जब तक सारे सिंबल्स प्रोसेस नहीं हो जाते, और 2 स्टेप्स को मैं रिपीट करना है। 2 क्यों है? क्योंकि एक है कि अगर ऑपरेटर आया तब क्या करना है, एक है अगर ऑपरेंड आया तब क्या करना है। सो सेकेंड स्टेप, अगर ऑपरेटर आया तो क्या करना है, ऑपरेटर को ऑपरेटर स्टैक में पुश कर दो एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग मार्कर को ऑपरेंड स्टैक में पुश कर दो, सिंपल। सो ऑपरेटर आया फिर तो बहुत सिंपल काम है कि ऑपरेटर को हमने ऑपरेटर स्टैक में डाल दिया एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मार्कर को ऑपरेंड स्टैक में डाल दिया। और इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जितने ऑपरेटर्स ऑपरेटर स्टैक में हैं उतने ही मार्कर्स ऑपरेंड स्टैक में होने चाहिए, ठीक है। सेकेंड, अगर ऑपरेंड आया तब क्या करना है? नाउ सी दिस स्टेप इज कॉम्प्लिकेटेड। अगर तो टॉप ऑफ द ऑपरेंड स्टैक एक मार्कर है, ऑपरेंड आया ना, लेकिन ऑपरेंड स्टैक का जो टॉप में मार्कर पड़ा है, फिर तो हम ऑपरेंड को डायरेक्टली इंसर्ट कर देते हैं, देन पुश दैट ऑपरेंड इनटू द ऑपरेंड स्टैक। सो ये स्टेप तो बहुत सिंपल होता है कि ऑपरेंड आया, हमने उसको ऑपरेंड स्टैक में डालना है, और ऑपरेंड स्टैक के टॉप में मार्कर पड़ा हुआ है, मार्कर के ऊपर तो ऑपरेंड आ सकता है। सो दिस स्टेप इज सिंपल। लेकिन अगर टॉप ऑफ द ऑपरेंड स्टैक इज अनदर ऑपरेंड, लेकिन अगर टॉप ऑफ द ऑपरेंड स्टैक में मार्कर की जगह एक ऑपरेंड पड़ा हुआ है, तो हमें पता है 2 ऑपरेंड्स इकट्ठे नहीं हो सकते, तब हमने इन स्टेप्स को रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है? जब तक टॉप ऑफ द ऑपरेंड स्टैक ऑपरेंड ही है, तब तक रिपीट करते जाना है, ठीक है। क्या करना है? पॉप द ऑपरेंड फ्रॉम ऑपरेंड स्टैक। ऑपरेंड स्टैक में से एक ऑपरेंड निकालते थे, मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाती हूँ ये स्टेप्स को। सी, लाइक इन दिस स्टेप, सी 4 ने इंसर्ट होना है, 4 की टर्न है, इफ ऑपरेंड इज फाउंड, 4 आया। अब देखो क्या टॉप ऑफ द ऑपरेंड स्टैक में मार्कर है? इफ टॉप ऑफ द ऑपरेंड स्टैक इज अ मार्कर, नो मार्कर नहीं है, इट मीन्स एल्स इफ चलेगी, ठीक है। क्या टॉप ऑफ द ऑपरेंड स्टैक अनदर ऑपरेंड है? यस, 4 आया, यहाँ इसने ऑपरेंड स्टैक में जाना है, लेकिन टॉप ऑफ द ऑपरेंड स्टैक में एक ऑपरेंड पड़ा है, 12 और 4 इकट्ठे नहीं हो सकते। तब क्या करना है? हमने कुछ स्टेप्स को रिपीट करना है। कब तक? जब तक टॉप में ऑपरेंड है तब तक। स्टेप क्या है? पॉप द ऑपरेंड फ्रॉम ऑपरेंड स्टैक, ऑपरेंड स्टैक में से ऑपरेंड को पॉप कर लो, कर लिया। पॉप मार्कर फ्रॉम ऑपरेंड स्टैक, ऑपरेंड स्टैक में से मार्कर को भी पॉप कर लो,
एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर फ्रॉम ऑपरेटर स्टैक, और इस मार्कर का जो ऑपरेटर था उसको भी पॉप कर लो। कर लिया, यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद परफॉर्म, ये स्टेप परफॉर्म करना है। पॉप्ड ऑपरेंड, पॉप्ड ऑपरेंड इज 12, जो ऑपरेटर पॉप किया है, एंड द रेड ऑपरेंड, रेड मीन्स इसको हम रीड कर रहे हैं, दैट इज 4। इसको सॉल्व कर लो। पॉप्ड ऑपरेंड 12, ऑपरेटर डिवाइड, रेड ऑपरेंड, दैट द ऑपरेंड विच वी हैव रेड दैट इज 4, इसको परफॉर्म करो एंड ऑब्टेन द रिजल्ट। सो 12 डिवाइड बाई 4 इज 3, रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हम रिजल्ट को फिर से यहाँ पर डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इफ़ टॉप ऑफ द ऑपरेंड स्टैक इज अनदर ऑपरेंड, अब फिर से टॉप ऑफ द ऑपरेंड स्टैक ऑपरेंड है, 40 और 3 इकट्ठे नहीं हो सकते। देन रिपीट दी स्टेप्स अगेन, जो हमने पीछे पढ़े हैं 3.b.1 एंड 3.b.3 तक, दी स्टेप्स, रिपीट दी स्टेप्स अगेन। ये स्टेप्स क्या कहते हैं कि, लेट मी शो यू। अब प्रॉब्लम क्या थी कि 3 ने आना है 40 के ऊपर, फिर से टॉप ऑफ द ऑपरेंड स्टैक ऑपरेंड है, तो ये स्टेप्स फिर से रिपीट होंगे। क्या करो, पॉप द ऑपरेंड फ्रॉम ऑपरेंड स्टैक, पॉप कर लिया, पॉप द मार्कर फ्रॉम ऑपरेंड स्टैक, पॉप कर लिया, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर फ्रॉम ऑपरेटर स्टैक, पॉप कर लिया, और क्या परफॉर्म करो जो अगले पेज पे लिखा हुआ है, पॉप्ड ऑपरेंड 40, ऑपरेटर माइनस, एंड जो नया ऑपरेंड है 3, और इसको सॉल्व करो 37। और अब देखो 37 स्टैक में जाता है कि नहीं जाता, तो इसका स्टेप कौन सा है। सो 37 आया, हमें रिजल्ट मिल गया 37। इफ़ टॉप ऑफ द ऑपरेंड स्टैक इज अनदर ऑपरेंड, नहीं हमारे केस में ऑपरेंड स्टैक खाली है, कोई ऑपरेंड नहीं है टॉप में। एल्स इफ टॉप ऑफ द ऑपरेंड स्टैक इज अ मार्कर और ऑपरेंड स्टैक इज एम्प्टी, देन पुश द रिजल्ट इनटू द ऑपरेंड स्टैक, फिर रिजल्ट को ऑपरेंड स्टैक में पुश कर दिया। तो ये स्टेप्स हमने रिपीट किए। जब ये लूप्स ख़त्म हो गई तो जो टॉप ऑफ द स्टैक में रह गया दैट इज़ द रिजल्ट। आई होप इट इज़ क्लियर। फाइन, एंड डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। फाइन। Now let us start the last 6th application of stack, that is stack is used to sort a list using quick sort technique। आपको याद है हमने कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स एरेज के चैप्टर में पढ़ी थी। They were bubble sort, merge sort, insertion sort and selection sort। अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट स्टैक्स की एप्लीकेशन क्यों है, क्योंकि आप देखोगे जब हम क्विक सॉर्ट परफॉर्म करेंगे, जब उसका एल्गोरिदम परफॉर्म करेंगे तो उसमें स्टैक्स यूज़ होंगे। दैट्स वाई क्विक सॉर्ट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टडी द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ क्विक सॉर्ट टेक्निक, हाउ टू सॉर्ट अ लिस्ट यूजिंग क्विक सॉर्ट। यानी हमें अनसॉर्टेड लिस्ट गिवन होगी, हमने उसको क्विक सॉर्ट से सॉर्ट करना है। क्विक सॉर्ट टेक्निक, it is also a sorting technique used to sort an unsorted list of numbers. This technique uses stack data structure and is based on the concept of divide and conquer. अभी पता लग जाएगा आपको कैसे। For example, sort the following using quick sort. The list is given. See, the list is unsorted and we have to sort it using quick sort technique. Fine. Now how to solve a list using quick sort technique. I have written the same example again on this page. See, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 elements in the list and the list is unsorted. We have to sort it using quick sort. इतना clear? अब क्विक सॉर्ट टेक्निक कैसे वर्क करती है ध्यान से समझो। नेम है क्विक सॉर्ट, लेकिन आपको थोड़ी टीडियस लगेगी। चलो करनी तो है, सो लेट अस स्टार्ट। क्विक सॉर्ट टेक्निक में सबसे पहला काम हमने क्या करना है, हमने लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, कोई भी है जो भी है, लाइक हमारे एग्जाम्पल में 44 है,
जो भी लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है ना, इसको हमने सबसे पहले इसकी करेक्ट लोकेशन पर लेके जाना है। कैसे, ये देखो 44 इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, तो पहला काम हमारा क्या होगा, 44 की करेक्ट लोकेशन क्या होगी जब लिस्ट सॉर्टेड होगी, तो 44 कहाँ होगा, हमने 44 को सबसे पहले सॉर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने लिस्ट को ना राइट टू लेफ़्ट स्कैन करना है, तब तक जब तक 44 से छोटा नंबर नहीं मिल जाता। सो इस हिंट को मुझे यहाँ पर लिखने दो आपको समझाने के लिए कि जब भी हमने राइट टू लेफ़्ट स्कैन करना है ना, राइट टू लेफ़्ट, तब हमने स्मॉलर एलिमेंट ढूंढना है। ठीक है, और जब भी हम लेफ़्ट टू राइट स्कैन करेंगे तब हम ग्रेटर एलिमेंट ढूंढेंगे। ये बात याद रखनी है। सो लेट अस कंटिन्यू। हमारा टारगेट क्या है कि 44 को उसकी करेक्ट लोकेशन पर लेके जाना है। सो फॉर दैट हमने हमेशा राइट टू लेफ़्ट स्कैनिंग ही शुरू करनी है सबसे पहले। ठीक है, कोई भी लिस्ट हो राइट टू लेफ़्ट स्कैनिंग शुरू करनी है। हमने लिस्ट को राइट टू लेफ़्ट स्कैन करना है तब तक जब तक 44 से छोटा एलिमेंट नहीं मिल जाता। क्या ये स्मॉलर है? नो, 44 से ये भी स्मॉलर नहीं है, 44 से ये स्मॉलर है, 44 से मिल गया। इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। सो 22 इधर आ गया, 44 इधर आ गया, बाकी लिस्ट सेम है। अब 44 इधर है। अब हमने लिस्ट को लेफ़्ट टू राइट स्कैन करना है तब तक जब लेफ़्ट टू राइट करना है तो ग्रेटर एलिमेंट ढूंढना है, तब तक जब तक 44 से ग्रेटर एलिमेंट नहीं मिल जाता। क्या ये ग्रेटर है? नो नो नो, येस। देन स्वैप 44 विद दिस एलिमेंट। सो हमने स्वैप कर दिया, बाकी लिस्ट रिमेन सेम। अगेन राइट टू लेफ़्ट स्कैन करो और राइट टू लेफ़्ट के टाइम पे स्मॉलर एलिमेंट ढूंढना है। नो 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 नो, येस, दिस इज अ स्मॉलर एलिमेंट एज कम्पेयर टू 44। सो वी विल स्वैप दीज टू एलिमेंट्स। सो 40 इधर आ गया, 44 इधर आ गया। अगेन लेफ़्ट टू राइट स्कैनिंग करनी है और ग्रेटर एलिमेंट ढूंढना है। दिस इज ग्रेटर, नो नो नो, येस, दिस इज ग्रेटर। सो स्वैप दीज टू। 44 इधर आ गया, वो ग्रेटर एलिमेंट इधर चला गया। अब अगेन राइट टू लेफ़्ट स्कैनिंग करो जब तक स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिल जाता। क्या 44 से है कोई स्मॉलर? नो, 44 से कोई स्मॉलर एलिमेंट नहीं मिला, यानी 44 अब नहीं हिला अपनी जगह से, स्वैपिंग नहीं हुई। जब भी 44 हिलना बंद कर गया, इट मीन्स 44 अपने करेक्ट लोकेशन पर पहुंच गया। क्लियर है इतना? इतनी वीडियो को दोबारा देखो चाहे, ठीक है। 44 अपनी करेक्ट लोकेशन पर कैसे पहुंचा। हमेशा स्कैनिंग लेफ़्ट टू राइट से शुरू करनी है। पहले लेफ़्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। कब तक करती जानी है? जब तक वो नंबर जो है पहला वाला वो हिलना बंद नहीं कर गया। और जब भी लेफ़्ट टू राइट स्कैनिंग करनी है, स्मॉलर एलिमेंट ढूंढना है, पहले एलिमेंट से स्मॉलर। और जब राइट टू लेफ़्ट करनी है, सॉरी, जब राइट टू लेफ़्ट करनी है तब स्मॉलर ढूंढना है। जब लेफ़्ट टू राइट स्कैनिंग करनी है तब 44 से ग्रेटर एलिमेंट ढूंढना है। ठीक है, चलो 44 अपनी लिस्ट में अपनी लिस्ट की करेक्ट पोजीशन पे पहुंच गया। अब 44 ने लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक लिस्ट 44 से पहले, एक लिस्ट 44 के बाद। 44 इज सॉर्टेड। अब पहले इस लिस्ट को पकड़ लेते हैं। जैसे ये लिस्ट थी वैसे ये लिस्ट है। अब इस लिस्ट का पहला एलिमेंट क्या है? 22। तो हमारा टारगेट क्या है? 22 को इसकी करेक्ट लोकेशन पे लेके जाना। सो कैसे करते हैं? सेम वही प्रोसेस। राइट टू लेफ़्ट स्कैन करो, 22 से स्मॉलर एलिमेंट ढूंढो, मिला, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। लेफ़्ट टू राइट स्कैन करो, 22 से ग्रेटर एलिमेंट ढूंढो, मिला, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। राइट टू लेफ़्ट स्कैन करो, 22 से स्मॉलर एलिमेंट ढूंढो, नहीं मिला, इट मीन्स 22 सॉर्ट हो गया। फिर 22 ने लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 22 भी सॉर्ट हो गया, 44 भी सॉर्टेड था। 22 से पहले लिस्ट में एक एलिमेंट है, एक रह गया तो वो भी सॉर्टेड ही होता है। इस लिस्ट में 2 एलिमेंट्स हैं। अब हमारा टारगेट है 33 को करेक्ट लोकेशन पे लेके जाना। लिस्ट को राइट टू लेफ़्ट स्कैन करो, 33 से छोटा एलिमेंट ढूंढो, नहीं मिला, 33 नहीं हिला, इट मीन्स 33 भी सॉर्टेड है। 33 ने लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये लिस्ट थी ना,
इस साइड पर तो कोई एलिमेंट नहीं है, इस साइड पर एक है, वो भी सॉर्टेड है। यानी पहले 44 सॉर्ट हुआ, फिर 22 सॉर्ट हुआ, 11 अपने आप सॉर्ट हो गया क्योंकि एक रह गया था लिस्ट में एलिमेंट। इस लिस्ट में 2 थे, उससे 33 सॉर्ट हुआ, फिर इस लिस्ट में एक रह गया था, ये भी सॉर्ट हो गया। सो ये 5 एलिमेंट सॉर्ट हो गए। अब इस लिस्ट की टर्न। अब क्या टारगेट है हमारा? 90 को, पहले एलिमेंट को करेक्ट लोकेशन पे लेके जाना। तो राइट टू लेफ्ट स्कैन करो, 90 से स्मॉलर एलिमेंट ढूंढो। पहला मिल गया स्मॉलर, इंटरचेंज करो। लेफ्ट टू राइट स्कैन करो, 90 से ग्रेटर एलिमेंट ढूंढो, मिल गया, स्वैपिंग करो। राइट टू लेफ्ट स्कैन करो, 90 से स्मॉलर एलिमेंट ढूंढो, मिल गया, स्वैपिंग करो। लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग करो, 90 से ग्रेटर एलिमेंट ढूंढो, नहीं मिला, 90 नहीं हिला, इट मीन्स 90 हो गया सॉर्ट। 90 ने लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये साइड ऑलरेडी सॉर्टेड है, एक एलिमेंट है तो ये भी सॉर्टेड है, ये 2 चीज़ें सॉर्ट हो गई। और इस लिस्ट, ये लिस्ट रह गई अब 90 के इस साइड वाली। अब हमारा टारगेट क्या होगा? 66 को करेक्ट लोकेशन पे लेके जाना। राइट टू लेफ्ट स्कैनिंग करो, 66 से स्मॉलर एलिमेंट ढूंढो, मिल गया, स्वैप करो, ये स्वैप कर दिया। लेफ्ट टू राइट स्कैन करो, 66 से ग्रेटर एलिमेंट ढूंढो, मिल गया, स्वैपिंग की। राइट टू लेफ्ट स्कैन करो, 66 से स्मॉलर एलिमेंट ढूंढो, मिल गया, स्वैपिंग की। लेफ्ट टू राइट स्कैन करो, 66 से ग्रेटर एलिमेंट ढूंढो, नहीं मिला, लिस्ट 66 नहीं हिला। इसने लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक लिस्ट में ये, एक लिस्ट में ये 2 एलिमेंट, 66 सॉर्ट हो गया। इस लिस्ट को पकड़ो, टारगेट इज 55 को करेक्ट लोकेशन पे लेके जाना। लिस्ट को राइट टू लेफ्ट स्कैन करो, 55 से स्मॉलर एलिमेंट ढूंढो, नहीं मिला, 55 नहीं हिला, इट मीन्स 55 सॉर्ट है। 55 ने लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक एलिमेंट 55 से पहले कोई भी नहीं है, एक लिस्ट 55 से बाद वाली एक ही एलिमेंट है, यानी वो भी सॉर्टेड है। ये लिस्ट रह गई। टारगेट इज 88 को करेक्ट लोकेशन पे लेके जाना। लिस्ट को राइट टू लेफ्ट स्कैन करो, 88 से स्मॉलर एलिमेंट ढूंढो, मिल गया, स्वैपिंग करो। लेफ्ट टू राइट स्कैन करो, 88 से बड़ा एलिमेंट ढूंढो, ये हमने स्वैपिंग कर दी। 88 से बड़ा एलिमेंट ढूंढो, नहीं मिला, 88 अपनी करेक्ट लोकेशन पे पहुंच गई। इसने लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इस साइड कोई एलिमेंट नहीं है क्योंकि ये लिस्ट थी ना, इस साइड कोई एलिमेंट नहीं है, इस साइड एक एलिमेंट है, एक है तो सॉर्टेड है। तो इस तरह करते करते देखो सारी लिस्ट सॉर्ट हो गई। इसको समझने के लिए वीडियो को दोबारा देखो, बार बार देखो, और क्विक सॉर्ट टेक्निक कैसे वर्क करती है इसको अच्छे से समझो। क्लियर? Then students, I have written few differences between merge sort and quick sort. ये एग्जाम्स में आ जाते हैं। merge sort divides the array exactly at middle point. आपको याद होगा merge sort, सबसे पहले हम लिस्ट को मिडिल पॉइंट में डिवाइड करते हैं। लेकिन क्विक सॉर्ट क्या करता है? इट मे और मे नॉट पार्टीशन एरे इनटू इक्वल पार्ट्स। मर्ज सॉर्ट में जो एलिमेंट है वो लिस्ट को ऐसे डिवाइड करता है कि इक्वल पार्ट्स हैं दोनों। लेकिन क्विक सॉर्ट में ज़रूरी नहीं है, एक पार्ट छोटा एक पार्ट बड़ा भी हो सकता है। हियर मर्जिंग इज रिक्वायर्ड, हियर मर्जिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। दिस एल्गोरिदम इज आइडियली प्रेफर्ड फॉर लिंक लिस्ट, दिस एल्गोरिदम इज आइडियली प्रेफर्ड फॉर एरेज। It is slower, it is faster. It uses bottom up approach to sort a given list. अगर आपको याद है हमने लास्ट से शुरू किया और एलिमेंट्स को मर्ज करना शुरू कर दिया ऊपर तक। It uses top down approach, ऊपर से लिस्ट को डिवाइड करना शुरू कर दिया क्विक सॉर्ट में। It is more complex, it is less complex. It requires more memory space, it requires less memory space. The major task here is to merge two sublist. Sublist को merge करना है, जोड़ना है। Here the major task is to break और partition the list into two sublists. फिर complexity है merge sort की, best case में, average case और worst case में same है, n log n. Quick sort के केस में best और average केस में n log n है इसके जैसी, लेकिन worst case में n square होगी। It works at same speeds for both small and large data sets. छोटी लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है, merge sort की स्पीड एक जैसी रहेगी। क्विक सॉर्ट जो है
छोटी लिस्ट है तो जल्दी सॉल्व कर देगी, बड़ी लिस्ट है तो क्विक सॉर्ट टाइम लेगी, ठीक है. सो दिस इज़ अ डिफरेंस. सो विद दिस द चैप्टर इज़ ओवर. आई होप all the topics are very well clear to you.